Let's see how is it. Basic buffer. So basic buffer में I have NH4OH plus its salt, that is NH4Cl. अब ये जो सॉल्ट रहेगा, जितना भी डिसॉल्व रहेगा, ये पूरा का पूरा आयनाइज कर जाएगा इन NH4 प्लस एंड देन Cl माइनस आयन. और ये जो बेचारा हमारा वीक बेस है NH4OH, अभी इस बेचारे के साथ में वापस से वही ट्रेजेडी होने वाली है. कौन सी वाली ट्रेजेडी बताओ जरा, कि ये अपने को कॉमन आयन मिल गया. कॉमन आयन. यस, कॉमन आयन विच इज कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट. तो अभी ये NH4 दो जगह से आ रहा है, जैसे पहले वाले केस में आया था. कहाँ से आ रहा है कि NH4OH के साथ में आ रहा है, और दूसरा सॉल्ट के साथ में आ रहा है. बट सॉल्ट के साथ में क्या आ रहा है, सॉल्ट तो भाई पूरा का पूरा आयनाइज कर देगा. सॉल्ट बोलेगा जितना चाहिए मैं पूरा का पूरा 100% मेरा डिसोसिएशन है. एक तो ये बेचारा NH4OH वीक बेस, इन एडिशन तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया उसने, NH4Cl ने बढ़ा दिया, तो उसने चीटिंग कर दी. तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 रहेगा दैट विल बी मेनली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट. ये समझ में आया क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वुड बी the concentration of NH4 coming from the salt. तो अब इसका Kb डिफाइन करेंगे. So Kb for this reaction would be concentration of NH4 plus into OH minus ions divided by NH4OH. तो अगर तुम इसको यहाँ पे देखोगे, so यहाँ पे तो H है नहीं, लेकिन यहाँ पे OH आपको मिल जाएगा. So concentration of OH minus ions would be concentration of OH minus ions would be Kb into NH4OH by NH4 plus. This is concentration of OH minus ions. ठीक है, तो फिर बस हो गया. यहाँ पे log ले लो. Log of concentration of OH minus ions would be log of exactly similar working है, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है. Kb into concentration of NH4OH by concentration of NH4 plus. अभी log of A into B is equals to, so this is equals to log of Kb plus log of NH4OH by NH4 plus. अब ये log है, बट अपने को तो POH चाहिए. So POH is nothing but minus log of OH minus ions. तो माइनस माइनस हर जगह इंट्रोड्यूस कर दो. So this is minus log Kb minus log NH4OH by concentration of NH4 plus, which is now minus log Kb is nothing but PKb plus log of concentration of NH4 plus divided by concentration of NH4OH. तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि PKb तो PKb ही रहेगा. ओके, so यहाँ से what we get is that POH is equals to PKb plus log of, अभी जैसे हमने बोला था ये तो पूरा का पूरा सॉल्ट से ही आ रहा है. So it will be concentration of the salt by concentration of the base. ये हमारा दूसरा बहुत ही important formula हो गया. That POH of a basic buffer, जिसमें कि weak buffer रहेगा, और फिर उसका corresponding strong acid के साथ में salt रहेगा, उसका POH is equals to PKb plus log of salt upon base. तो अब एक बार POH निकल गया, so I can very easily calculate pH because pH plus POH is equals to 14. Buffer action. बफर एक्शन का मतलब है कि भाई मैंने बोल तो दिया कि अगर बफर रहेगा तो पीएच रेजिस्ट करेगा, बट कैसे पीएच रेजिस्ट करता है, ठीक है, तो वो देख लो. तो जैसे ही सबसे पहले हम एसिडिक बफर लेंगे, एसिडिक बफर.
तो एसिडिक बफर में सबसे पहले लिया CH3COOH और उसका कॉम्बिनेशन ले लिया CH3COONA के साथ में। तो ये जो CH3COONA है, this will ionize completely to give CH3COO minus plus Na plus, and then here we have acetic acid which dissociates to give CH3COO minus plus H plus. अब दो तरीके से मैं इसका pH चेंज कर सकता हूं। एक तो पहला है by adding an acid, by adding H plus ions into the solution, or by adding OH minus ions into the solution. तो अभी केस 1 लेंगे। केस 1 में I have added H plus ions into the solution and let's see what happens. Okay. तो ये जो H plus ions आएंगे ये कहाँ से आएंगे? तो ये जो H plus ions आएंगे ना, तो ये मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैंने सोल्यूशन में ऐड कर दिया, HCl, if I add into the solution, then what happens? So HCl is a very strong acid, so this will ionize into H plus and then Cl minus ions. So all of a sudden in the solution, the concentration of H plus ions will go up. Okay, so let's assume that I have added A moles of HCl. How many moles of HCl? A moles of HCl. ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैंने A moles of HCl ऐड किया ना, अब देखो तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। CH3COOH, which is a weak acid, and it ionizes into CH3COO minus and then H plus. इस रिएक्शन का जो Ka होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁵. 10⁻⁵ बोले तो बहुत ही वीक हो गया। 10⁻⁵ मींस इट्स वेरी वीक। तो जो ऑपोजिट साइड का जो डायरेक्शन इक्विलिब्रियम होगा, ऑपोजिट साइड मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा लिख दूं, दैट इज H plus plus CH3COO minus is in equilibrium with CH3COOH. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये 1/K होगा, दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁵. मतलब ये बहुत ही फास्ट होगा। तो जितना भी मैंने, ध्यान से सुन लो, H plus ऐड किया है वो पूरा का पूरा H plus CH3CO माइनस के साथ में रिएक्ट करके वीक एसिड बना लेगा। सो दिस इज हाउ द बफर digests H plus ion. The H plus which is coming from strong acid is being converted into a weak acid. समझ में आया क्या? वापस से बोल रहा हूं, ये H plus जो कि HCl से आ रहा है वो ये बफर सॉल्यूशन खुद में डाइजेस्ट कर ले रहा है, and this H plus is getting converted into CH3COOH which is a weak acid. तो let's say अगर मैंने इसका A मोल्स ऐड कर दिया, कितना मोल ऐड कर दिया? A मोल। अभी CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्ट रहेगा जो पहले था, ठीक है। अभी इसका जो एसिड है वो एसिड पहले से ही रहेगा। जब मैंने A मोल ऐड कर दिया ना, तो ये A पूरा का पूरा इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। मतलब आफ्टर द रिएक्शन A माइनस A 0, सोल्यूशन में बिल्कुल H प्लस नहीं बचेगा। सोल्यूशन में कितना CH3CO माइनस बचेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट माइनस A बचेगा। और एसिड का नया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पहले वाला प्लस A, बिकॉज 1 mole of H plus will react with 1 mole of CH3CO minus to produce 1 mole of CH3COOH. So how the equation is going to look like? So the new pH would be pKa will never change plus log of concentration of जो salt था, तो अब जो नया concentration आ जाएगा that will be salt plus A, sorry minus A, not plus A. Here it will be माइनस ए, ये देखो ना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड प्लस ए। एंड व्हाट इज ए? ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ions added into the solution. समझ में आ रहा है? What is A? A is the number of H plus ions added into the solution. I add a base. So एडिशन ऑफ बेस ऐड किया, मतलब इफेक्टिवली OH माइनस आयंस ऐड किया मैंने। तो अब अगर देखोगे तो OH माइनस इज बेस ऑलवेज रिएक्ट्स विद एसिड, दैट इज CH3COOH, एंड इमीडिएटली आई विल गेट द सॉल्ट। अभी बेस ये OH माइनस जो आ रही है कहीं और से नहीं आएगा, दिस विल कम फ्रॉम NaOH ओनली। और जो एसिड है वो HCl से आएगा। सो इन शॉर्ट OH माइनस की जगह पे आई एम एडिंग लेट्स से NaOH।
सो ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया. सो आई विल गेट CH3COO माइनस Na प्लस एंड H2O. H2O तो पानी है, पानी तो पानी की तरह मिल जाएगा. अब अगर मान लो इसका मैंने A मोल्स ऐड किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था और इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द सॉल्ट. तो अगेन 1 मोल ऑफ दिस विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ दिस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ दिस. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, A मोल्स ऑफ दिस विल रिएक्ट विद A मोल्स ऑफ दिस. तो इसका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A मोल से कम हो जाएगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन A मोल से बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे जो pH रहेगा pKa प्लस log of salt upon acid. So this is pKa plus log of salt का concentration would be concentration of the salt plus A and acid का concentration would be concentration of acid minus A. So this will be the new pH. pKa plus log of concentration of salt plus A by concentration of acid minus A. ये समझ में आया क्या? That if I have a basic buffer और उसमें हम एसिड और बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा. अब बेसिक बफर में हम लेते हैं NH4OH को. बेसिक बफर मीन्स NH4OH प्लस NH4Cl. तो अब अगर मैंने इसमें H प्लस ऐड कर दिया तो क्या होगा. तो H प्लस इज कमिंग फ्रॉम एसिड, तो एसिड तो हमेशा बेस से ही रिएक्ट करेगा. तो H प्लस विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद NH4OH and then we will be getting H2O plus NH4 plus. This is the salt. ये salt हो. तो इनिशियली इसका A मोल है, ये बेस है और ये सॉल्ट है. ठीक है ना. तो अब अगर इसका मैंने A मोल ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, तो आफ्टर सम टाइम इस पूरा का पूरा A एग्जॉस्ट कर जाएगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन A मोल से कम हो जाएगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन A मोल से बढ़ जाएगा. तो POH का क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ जरा. pKb plus log of what will be the new salt, concentration of salt plus A divided by what will be the new concentration of base minus. ये समझ में आ रहा है. हाँ सर. Good. Now if I add a base, what will happen बोलो. बेस मतलब OH माइनस एन अगर मैंने सोल्यूशन में ऐड कर दिया. तो अभी देखो ये वीक एसिड है. ओके, वीक एसिड का मतलब इसका ये जो डिसोसिएशन है ना Kb, ये ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻5 का है. तो अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब NH4 प्लस प्लस OH माइनस हैंस गिविंग NH4OH कर दूं, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी 1/Kb व्हिच विल बी ऑफ द ऑर्डर 10⁻5. अब ये 10⁻5 का क्या मतलब होता है. तो 10⁻5 का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा इन फॉरवर्ड रिएक्शन. तो जितना भी मैं, ध्यान से सुन लो, जितना भी मैं OH माइनस आयंस ऐड करूंगा ना सॉल्यूशन के अंदर, वो पूरा का पूरा NH4 आयन जो पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा उससे रिएक्ट करके ये वीक बेस बना देगा. मतलब OH माइनस आयंस which is coming from strong acid like NaOH will be digested and it will be converted into a weak base. So this is your weak base and this OH minus is coming from your strong base. ठीक है. तो अगर मान लो इसका A मोल्स मैंने ऐड कर दिया, so this is nothing but this is salt, concentration of salt and this is base initially. तो अब जितना भी मैंने OH माइनस आयंस लिया है वो पूरा का पूरा सॉल्ट के साथ में कंबाइन कर लेगा. So I'm going to get salt minus A. Here it will be A minus A. और इसका concentration उतने से ही बढ़ जाएगा. So this is base, this will be plus A. समझ में आ रहा है क्या? तो how the expression of POH will look like? POH would be pKb plus log of salt का concentration क्या होगा? तो अभी कम हो जाएगा. तो that is salt minus A. Sir, can you repeat? Divided by base plus A. बोलो क्या रिपीट करूं.